Dear students, today we are discussing the topic set theory. Now, set theory is a concept on which you will study about set, types of set, how to write a set, Venn diagram for operation of set that is union and intersection, also cardinal form. So these are all concepts which you will study in this chapter. Okay. So before starting any of the topic, let us first talk about what is set. Okay. Now remember, beta, set is a collection of well defined objects. Okay. Now where well defined का मतलब होता है that where you are not confused, where you are very particular that what to write here. Okay. So remember, set is a collection of well defined objects. For example, if I ask you set of natural numbers, okay, if I ask you natural numbers, so you are very sure that natural number starts from 1, it will go from 2, 3, 4, 5, 6, so on. ठीक है, it means you are very particular, you are not confused in it. ठीक है, आप confused नहीं हो इसमें कि 3 आएगा कि नहीं आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, because natural number are fixed, you are knowing start from 1 and it will go till infinite. ठीक है, but if I tell you that write the set of all your favorite books, all your favorite books. Now if I ask you this question, see, suppose if I am asking this question from Akshat, his question will be different, his answer will be different, sorry. If I will ask this question from Kaushik, his answer will be different than Akshat. If Hansika will give answer, Hansika का आंसर कुछ और होगा, सोनाली का आंसर कुछ और होगा, बिकॉज फेवरेट बुक तो सबकी अलग अलग होती है. जरूरी थोड़ी ना है कि सबकी फेवरेट बुक सेम ही हो. बट अगर मैं पूछूं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का आंसर सभी का सेम होगा. ठीक है, जो आंसर अक्षत बताएगा सेम वही आंसर कौशिक भी बताएगा, जो आंसर सोनाली बताएगी सेम वही आंसर रिया भी बताएगी. ठीक है, तो याद रखिएगा सेट का मतलब होता है जहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो और आंसर सभी का कॉमन हो. कॉमन का मतलब हुआ कि इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट कि हमें क्या लिखना है और सबका आंसर डिफर ना करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैंने पूछा कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है, तो कलर्स ऑफ रेनबो आर फिक्स्ड. ठीक है, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, green, yellow, orange, red. Now these are the colors of rainbow. But if I ask this question from whole class, their answer will be common. ठीक है, बट अगर हम मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ऑल योर फेवरेट कलर्स, तब क्या आंसर सेम होगा? रिप्लाई इन चैट. क्या आंसर कॉमन होगा अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स? डू यू थिंक आंसर विल रिमेन सेम और आंसर विल बी डिफर्ड? करेक्ट, वेरी गुड. आंसर विल बी चेंज. सबका आंसर अलग अलग होगा, बिकॉज मेरा कलर सपोज व्हाइट फेवरेट है, आपका कलर हो सकता है ब्लैक फेवरेट हो, किसी का कलर हो सकता है पिंक फेवरेट हो सकता है किसी का कलर ब्लैक फेवरेट हो. So here again the answers are not clear, and when answers are not clear, the set is not well defined, and if it is not well defined, it is not the example of set. Okay, so remember set is a collection of well defined object. Now some examples of set are set of natural number, set of prime number, set of composite number, set of even number, set of odd number, set of integer less than 10, ठीक है, set of colors of rainbow, set of boys in the class. ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हुए आपके बेटा वो सारे के सारे सेट के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो. ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग यू सम एग्जाम्पल्स जहां पर आप मुझे रिप्लाई करिए कि दैट आर दे set or not. Reply in the chat box. Now, set of favorite books. Set of favorite books. Is it the example of right set?
Correct. Very good. It is not the example of set. Now, collection of favorite movies. Collection of favorite movies. It is set or not? Again, no. Correct answer. Now, collection of favorite dresses. Collection of favorite dresses. Very good. Answer is no again. Collection of favorite dishes which you eat. Collection of favorite dishes which you eat. Again, no. Correct. Collection of favorite fruits. Collection of favorite fruits. Again, no. Very good. Now you can see यहाँ पर आप तुरंत बोल दे रहे हो कि मैम आंसर विल बी नो. क्यों बोल रहे हो बेटा नो? जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं है. हो सकता है आयुष की फेवरेट डिश मान लीजिए हो जाए इडली. ठीक है. हो सकता है सोनाली को समोसा पसंद हो सकता है हंसिका को रस मलाई पसंद हो या डोसा पसंद हो या हो सकता है दाल चावल ही पसंद हो. कौशिक को हो सकता है यहाँ पर कुछ और पसंद हो. अक्षर जलान को हो सकता है खीर पसंद हो. तो सबकी डिशेस तो भाई अलग अलग होंगी. तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं हुआ. ठीक है. So set is a collection of well defined objects. Now let us understand how to write set. अब याद रखिए सपोज हम किसी सेट के बारे में लिख रहे हैं. तो जैसे आपको पता है कि जब आपका नाम हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है. ठीक है. तो वैसे ही जब हम सेट को लिखते हैं तो उसका जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से हो सकता है. ठीक है. इट कैन बी कैपिटल ए, इट कैन बी कैपिटल बी, इट कैन बी कैपिटल सी, इट कैन बी कैपिटल एफ, इट कैन बी कैपिटल जी, एच, एक्स, वाई, जेड. जो भी आपको पसंद हो आप कोई भी डिश आप कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं आप. ओके. नाउ मूव ऑन टू सेट नेम. हो गया. अब हमेशा सेट के जो मेंबर्स होते हैं, आप सेट के मेंबर होते क्या है? मेंबर मतलब हुआ सपोज मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स. तब आप क्या बोलोगे? आपका पहला आंसर होगा मैम 1, फिर आप बोलोगे मैम 2, फिर बोलोगे आप 3, फिर बोलोगे 4, फिर बोलोगे 5. ऐसे करके आप बोलते ही चले जाओगे. तो ये हो गए बेटा मेंबर्स. इनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ सेट. ठीक है. अब सेट क्या है? सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं मेंबर्स को. ठीक है. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट विल बी रिटन इनसाइड द करली ब्रैकेट. ठीक है. सो करली ब्रैकेट विल बी मेड एंड यू विल बी राइटिंग द मेंबर्स. और मेंबर किससे सेपरेट होते हैं? हमेशा कॉमा से. दीज आर दी कॉमा. ठीक है. ये हो गए आपके पास कॉमा. तो कॉमा से आपके मेंबर्स सेपरेट होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास मेंबर्स को लिखना. अब देखो यहाँ पे दो तरीके से हम सेट को प्रॉपरली लिखते हैं. पहला हो गया ये जिसमें हम मेंबर्स को लिखते हैं. इसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्म. वी कॉल इट रोस्टर फॉर्म. ठीक है. रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है राइटिंग मेंबर्स ऑफ सेट. ठीक है. राइटिंग द मेंबर्स ऑफ सेट will be known as roster form. Now another form, suppose आपको लिखा है इस तरीके से set of multiples of 7. ओके. देखो दो फॉर्म है अलग अलग. ये भी सेट है और ये भी सेट है. इसमें क्या किया गया है? इसमें डिस्क्राइब किया गया है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7. तो ये डिस्क्राइब किया गया. तो जब हम डिस्क्राइब किए हुए फॉर्म में लिखते हैं तो उसे बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ओके. एंड रोस्टर फॉर्म मींस व्हेन यू राइट द मेंबर्स ऑफ सेट. सपोज अब मुझे यहाँ पे लिखना है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 7? फटाक से बताइए. चलिए क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 7? लिखिए चैट पे. व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 7 हियर? What are the multiples of 7? Very nice. Very good. I got the answer from multiple students. 7, 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35. And the list is very long, The list is very long. We don't know what will be the end point of it. Because हम जहां तक टेबल पढ़ सकते हैं, जहां तक हम चाहें वहां तक टेबल पढ़ी जा सकती है. ठीक है. So यहाँ पर means the members are unlimited.
ओके, अब आप देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट ये था और एक फॉर्मेट ये है, दोनों के दोनों ही सेट हैं बेटा। जो ये ऊपर लिखा है इसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। ROSTER। रोस्टर मतलब होता है जब हम डिस्क्राइब फॉर्म को मेंबर के फॉर्म में लिख देते हैं तब उसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, और जब हम सेट को क्या करके लिखते हैं, डिस्क्राइब करके लिखते हैं, तो उसे बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इट विल बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। Now we have done descriptive form, roster form, what is set and what is not a set. ठीक है, and also कि हम set को किस फॉर्म में लिखते हैं। अब आती है बारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल की जो सेट में यूज किया जाता है। वो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक और सिंबल यूज होता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, उसको हम लिख करके कट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों सिंबल जो है बड़े ही प्यारे से सिंबल है, नन्हे मुन्ने सुंदर सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नन्हे मुन्ने सुंदर सुंदर फिगर्स का नाम क्या है। सबसे पहले जो ऊपर वाला है इसका नाम है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ओके, और जो हमारे पास नीचे वाला फिगर है या नीचे वाला सिंबल है इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू है किस चिड़िया का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ऐसा मेंबर जो सेट के अंदर है। ठीक है, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो मेंबर सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू या एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, सपोज मैंने आपको बोला एक मेरे पास सेट है, उसका नाम है सेट पी। ठीक है, अब इस सेट पी में क्या हुआ कि अब तो आज तो सभी लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, बहुत तरह की मिठाई खाई होंगी आज। ठीक है, सारे भाइयों ने बहुत तरीके की मिठाई खाई होंगी और सारी बहनों ने बहुत सारे तरह की मिठाइयां खिलाई होंगी। तो हम जरा कुछ टाइप की मिठाइयां लिखते हैं यहाँ पर जो आज हमारे घर में खाई गई है। ठीक है, so here I am writing rasmalai, I am writing for R for rasmalai. Now I am writing here rasmalai ke alawa I am writing laddu, L for laddu, which we have eaten also, and also I have eaten imarti, so I am writing here E, imarti, and also I am writing here chum chum, that I am writing here for C. ठीक है, oh my god, kaju katli, yes, how can I forget kaju katli, correct, so I am including kaju katli also. ठीक है, so I have written these type of mithais, this is rasmalai, this is laddu, this is imarti, this is cham cham, and another one is kaju katli. अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं बेटा कि क्या रसगुल्ला उन मिठाइयों के अंदर आता है जो मैंने आज खाई है, अब आप मुझे यस और नो में आंसर करिए चैट बॉक्स में, क्या मेरे सेट में रसगुल्ला है, हाँ या ना। बिल्कुल नहीं है, करेक्ट, आर फॉर रस मलाई है, आर फॉर रसगुल्ला नहीं है मेरे सेट में। तो इट मीन्स यहां मैं लिखूंगी कि रसगुल्ला नॉट बिलोंग्स टू सेट पी। ओके, रसगुल्ला डज नॉट बिलोंग्स टू सेट पी। ये हो गया, क्योंकि इसमें वो मेंबर ही नहीं है, जो मेंबर नहीं है वो नॉट बिलोंग्स टू हो गया, जो मेंबर है वो बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ आपसे, क्या काजू कतली मैंने खाई है आज, क्या काजू कतली मेरी लिस्ट में है, हाँ या ना। क्या काजू कतली मेरी लिस्ट में है, बिल्कुल है, यस, काजू कतली इज रिटन एट द लास्ट, मीन्स दिस इज बिलोंग्स टू, तो यहां पर आ जाएगा काजू कतली। Yes. So Kaju Katli belongs to set P. This is also done. Now one question I am asking for, I am just asking for understanding कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप करेंगे। Let me rub this. Okay. Now I am writing a set M and set M में यहाँ पर कुछ different different colors हैं
जो आपसे पूछे गए हैं कि आपके फेवरेट कलर कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताया ये पूरी क्लास से पूछा गया, ठीक है। G for green, R for red, W for white, and Y for yellow. Okay. Now my question is, you have to put sign of belongs to, not belongs to, or belongs to, or not belongs to. Here, black belongs to or does not belongs to set M. This is B for black, huh? Now, purple belongs to or not belongs to set M. Next one, white belongs to or does not belongs to set M. Now, reply to me what will be the answer here. Now, students, you are totally correct. Black color does not belong to set M. Purple color does not belongs to set M. But yes, white color does belong, it belongs to set M. So here symbol belongs, does not belongs to, does not belongs to, and this is belongs to. Belongs to का मतलब हुआ कि it is a member of that set. Does not belong to का मतलब हुआ this is not the member of that set. Okay, this is all belongs to and not belongs to. अब हम बढ़ते हैं आगे and talking about the types of set. ठीक है, types of set which is again a very easy concept. अब देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास कई टाइप के सेट होते हैं। जब हम सेट लिखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं सेट के। अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सिंगलटन एंड एम्प्टी। इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके मेंबर अनकाउंटेबल होते हैं, जिसके मेंबर अनकाउंटेबल होते हैं विल बी नोन एज इनफाइनाइट सेट। नाउ अनदर सेट, ऐसा सेट जिसके मेंबर्स काउंटेबल होते हैं दे आर नोन एज फाइनाइट सेट। थर्ड वन, ऐसा सेट जिसके मेंबर की लिस्ट में केवल एक ही मेंबर होता है, there is only one member, then we call it singleton set. Single मतलब one, singleton set. Now empty, empty मतलब खाली, खाली मतलब कुछ भी नहीं, एकदम खाली, that is known as empty set. मतलब जिसके पास कोई member होता ही नहीं है, that will be called as empty set. Now let's understand with the help of example. Suppose there is a set, मैंने आपसे पूछा set of natural number लिखिए, आपने बोला ओके मैम लिखते हैं। तो अब आपने मेरे साथ लिखना शुरू किया, तो आपने शुरू किया 1 से, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 4, लिखा 5, लिखा 6, और आपने बोला मैम अब हम थक गए, कितना सारा लिखेंगे, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की लिस्ट तो लॉन्ग है ना। अगर हम 10 तक लिखेंगे तो 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, फिर 50 भी है, फिर 100 भी है, फिर 1000 भी है, फिर लाख भी है, फिर करोड़ भी है। So ma'am, how much we will write? So now what you will do? You will just put a dash dash or put a dot dot, means you are not able to write now because it is not fixed कि कहाँ तक जाएगा. So it means this is the example of infinite set. Infinite का मतलब हुआ members are uncountable. ठीक है, the list is very long. Now move on to the second type of set will be known as finite set. अब मैंने आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी कि बेटा write it down the set of natural number less than 7. अब मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि बेटा नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं लेकिन 7 से छोटे लिखने हैं। तब आपने लिखा यस मैम, ओके वी विल राइट। तो आपने शुरू किया 1 से, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 भी लिखा, 6 भी लिखा। 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। विल वी राइट 7? यस और नो? Oh, correct answer. We will not write 7. Why? Because it is asking less than 7. Okay? So अब देखो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया, अब इसके आगे हम कुछ लिख भी नहीं सकते, मीन्स यहाँ पर मेंबर्स जो है वो काउंटेबल है।
काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो फाइनाइट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो था, लेकिन यहाँ डॉट डॉट लगा था, मतलब हमको नहीं पता था ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। अब आती है बारी सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट का मतलब, अब आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। सपोज आपसे मैंने पूछा, टेल मी द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी इवन प्राइम वी हैव? If I ask you set of even prime number, how many even prime number do we have? Correct answer, only one even prime number is there, that is only 2। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता बेटा, ठीक है, ओनली देयर इज वन नंबर, दैट इज 2, ठीक है, तो 2 इज इवन प्राइम नंबर एंड यू हैव ओनली वन मेंबर इनसाइड, और जब केवल एक मेंबर इनसाइड होता है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगलटन सेट। ओके, नाउ द लास्ट वन, ठीक है, सिंगलटन के बाद नाउ लास्ट वन। लास्ट वन मीन्स, अब मैंने अगर आपसे पूछा कि बेटा कैन यू टेल मी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन, set of natural number less than 1, can you tell me, do we have any natural number less than 1? Do we have any natural number less than 1? Correct answer, there is no natural number because natural number start from 1 only, ठीक है, so 1 से छोटा यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता बेटा, तो आप आंसर लिखोगे नो वन। नो वन मतलब खाली, खाली मतलब एम्प्टी, कोई है ही नहीं, तो हम कहाँ से लिखेंगे, तो ये हो गया आपके पास, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। और एम्प्टी सेट को शो करने का एक और तरीका होता है, उसे बोला जाता है ये वाला सिंबल, पहले बनाओ जीरो और जीरो बना के कैंसिल कर दो, इट मीन्स वी कॉल इट फाइव, इसे बोला जाता है एम्प्टी सेट, ठीक है, फाइव, PHAI, फाइव, ठीक है, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आयुष, दैट जीरो इज होल नंबर, ठीक है, तो हम जीरो नहीं ले सकते वहां पे, तो वन से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, इनफाइनाइट मीन्स वेयर द मेंबर्स आर अनकाउंटेबल, नाउ फाइनाइट सेट मतलब हुआ वेयर द मेंबर्स आर काउंटेबल, ठीक है, then finite set where countable, infinite where इनका uncountable, सिंगलटन, सिंगलटन मतलब सिंगल मेंबर, और कोई मेंबर ही ना हो, केवल अकेला मेंबर, ठीक है, एक जंगल का एक शेर, ठीक है, जंगल का राजा एक शेर, ठीक है, तो यहाँ पर एक सिर्फ सिंगल मेंबर मतलब सिंगलटन सेट, और जब कोई भी ना हो, खाली, दैट मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी मतलब नो मेंबर, कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। Now one question from my side for everybody. आपको बताना है कि कौन सा वाला क्या सेट है। चलिए पहचानिए, राइट डाउन द चैट बॉक्स वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट वन, is it finite or infinite? The first one, is it a finite set or a infinite set? You write F or S or E or I, whatever is the answer. Wonderful, correct answer. It is the example of finite set because there are only 4 members inside. So this is finite set. Now, second one. Is it finite, infinite, singleton, empty? What it is? This is what? Very good. This is singleton set. Singleton set का मतलब हुआ where you have only and only one member. ठीक है, when you have only and only one member, you call it singleton set. What about this set? Third one, singleton, finite, infinite. Okay, देखो कितने सारे बच्चे एम्प्टी लिख रहे हैं। बेटा एम्प्टी क्यों हुआ, पहले तो आप मुझे ये बताओ, एम्प्टी कहाँ से हो गया?
नमन ने केवल सिंगलटन लिखा है, वेरी गुड नमन, एंड हर्षिका ऑल्सो। दिस इज अ सिंगलटन सेट बेटा। एम्प्टी का मतलब होता है ये खाली, इसके अंदर एक मेंबर लिखा हुआ है, कुछ तो है अंदर। And when you have something inside, it means you cannot say that it is empty. This is singleton set. This is singleton set. Now, what about this one? This one, 0. Correct answer again. This is again singleton set. 0 is inside. ठीक है? Singleton set का मतलब होता है when you have one member inside. So this is singleton again. What about this? Finite, infinite, singleton, empty. Finite, infinite, singleton, empty. Infinite, very good. Because dot given means you don't know till where it will go. Yes, this is infinite set. Correct answer. What about this one? The last one. करेक्ट आंसर एम्प्टी सेट। बेटा कभी भी कंफ्यूज मत होना, एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली, कुछ भी ना हो उसके अंदर। ठीक है, खाली का मतलब हुआ जब नथिंग इज देयर, और अगर कुछ भी उसके अंदर आ गया है तो फिर वो एम्प्टी कैसे हुआ बेटा। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक व्हिच वी हैव डन इट टुडे, दैट इज सेट होता क्या है, सेट कैसे लिखते हैं, सेट लिखने के दोनों फॉर्म डिस्क्रिप्टिव एंड रोस्टर, also the types of set we have done, that is finite, infinite, singleton, empty, also we have done belongs to, does not belongs to। ठीक है,